Sir, what is your opinion? What is the most important role of parent in a child's life? The most important role of a parent in child life is listening to students. Okay. What do you want to become is not the question. How are you feeling is the question. How children are feeling. Today we are talking about grades. No, Hmm. first talk that what activity did you participate in? Hmm. How are you doing in school? Right. Teachers are liking you, right? Right. So when we are listening to our children, they feel happy. And yes, while they when they go to school, right, hug them, say goodbye. When they come to school, miss keep on talking, right, and we keep sharing stories, keep listening to them, keep caring them. And when children are studying, serve them water, serve them fruits, give them a chop apple, give them. So you be connected with students, and they will. When love, see, love never spoils anyone. Love all makes only. So please love children, that too unconditionally. No. Moving to the next question, what advice do you have for parents to help their children develop resilience? Sir, इसके बारे में please डिटेल में बताइए. Sir, how can you expect children to be flexible when you are not flexible? Right? So, my suggestion to parents is first, whatever they want to transfer, they should be the change. No, when they are flexible, children would be flexible. When they are speaking politely, children will be speaking politely. When they are giving proper time to education, children will be giving proper time to education. When they are scrolling and browsing social media, they will be doing. So be the change. No, whatever you want to make children do, first you should do. Then children will automatically be doing. So teaching is not required, right? Doing is required. When they see you doing, they will definitely be doing themselves. It is very simple, sir. Right. Very, very right. So, talking into more complex question, once a student is gone to the school, or the total responsibility is of school, how do you suggest parent approach homework and academic responsibility with their kids? Yeah, it is very good question, sir. What happened? What happens in Singapore? I am giving you one example. Singapore, children are 80 children are there in one class. So as I in the beginning I stated, no, children bring value to school also. No, not only they are collecting value from school, they are bringing also. When you are mentoring children, when you are disciplining children, and when you are sending children with a purpose and objective, they will be sitting quietly, they will be learning more, they will be accepting the contents delivered by teachers. So parents play very important role in the formation of children. Whatever children are there on the basis of the behavior of parents. Yes. And please, second thing, that when parents are talking very positive things about a school, children would be positive. When parents are talking about teachers positively, children will also be accepting them positively. So the impact on the brain of and mind of on children is of parents very high. So therefore parents must know how to behave with children. Same behavior is carried to school, and they in their character as well. So my suggestion is that we should talk about education, and children must go with positivity, enthusiasm, purpose, objective, and with love towards schools. Right, sir. Right, sir. Very, very true, sir. Very true. Sir, talking to the technicality, what are some ways or tips a parent can promote critical thinking skills at home? See, if parents are giving children autonomy, decision making, how can you take all decisions? The child is a different individual. So let children take small steps in their lives, right? Buying things, preparation of list for buying ration from market. So these things will definitely be inculcating, right? And how to climb stairs, how to descend stairs, right? How to make their beds. So these small decisions must be taken by children, and slowly they will realize that their brain is their own. It is also very much required, sir. So let children do,
with a considerable freedom, that they have their own individuality, and when they understand it, they will definitely be taking good decisions, and decision making will consequently be making them critical thinkers. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Sir, talking to same context, what should parents do to help their children deal with peer pressure or stress or a syndrome, the comparison that they say? Sir, it is very simple. Your child is unique. Why to compare with others? And today, in this 21st century, competition is not the word, collaboration is the word, right? And if you see last 100 years, collaboration has developed 50 times more. So we should move towards collaboration. And yes, please do not talk about marks and grades. Please talk about how much have they learned. Discuss those things. Ask questions. And yes, Right. while having this conversation, please avoid using why. Always use how. Because you should not challenge. Because no, home is not a school, it is home. Your parents, you must love children unconditionally. So, what was the test? How about the test? Right? You can ask which test is there tomorrow, how did you perform in class test, how can I help you, this should be the question, right? Not how many marks have you obtained. That question should be avoided by parents, because parents must help children, right? Not distract and diminish them or belittle them. They should elevate children, they should love children, they should live children, they should like children, and spread love of fragrance of love. Right, right. That really, it was really great. Sir, talking to the next question, how can parents encourage their children to pursue their passion? Because initial said, yes, it happens that the children, they are not fixed their passion, and over a period of time, it gets evolved. And how parents can encourage in context of academics, in context of sports. Very good, sir. Very good. Sir, I was carrying my elder daughter to stadium when she was very young, very small, and I carried with the view that she will play badminton. Mhm. I met one coach. He told me, "How can you decide she is very good in badminton? So Right, please right, allow her to go for every game played in stadium. That is Gaurav right. district stadium, sir. Right? So that she can know what is she good at. In the Hmm. same manner, parents should realize that first of all, parents should evaluate themselves, sir. That what are they Hmm. good at? If they are feeling untired and producing outstanding results, same is applied to every individual. It is very simple. So we should not go for engineering and multi college. Whatever child is good at, it could be developed and could be nourished. And the simple idea is, please help your child to discover the gift, develop that gift, and distribute it to the world, because every child has one unique and outstanding excellent quality child has, and our the purpose of education is to discover that, and purpose of parenting is also to discover it, not to diminish or belittle children. Let them shine the way they want to shine, and we can only help and facilitate, because our child is different individual. We should try to respect individuality and passion a child has, enthusiasm child has. Right, sir. Right, sir. So, talking to the same context, what role do you think a discipline plays in parenting? कभी कभी डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, और फ्रेंड भी बनना पड़ता है. What role do you think discipline plays in parenting, and how it has to be integrated or incorporated? देखिए सर, डिसिप्लिन का जहां तक संबंध है, अनुशासन का जहां तक संबंध है, अनुशासन ये थोड़ी डांट के ही अनुशासन होगा. अगर पेरेंट्स अनुशासित हैं तो चिल्ड्रन अनुशासित होंगे ही होंगे. ठीक है, महीने में डांट दिया, 2 महीने में एक बार डांट दिया, दैट इज फाइन. अगर आप बार बार बच्चे को डांट रहे हो तो आप खुद ही अनुशासित नहीं हो. नहीं तो बच्चे को डांटने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर आप सुबह देर से उठते हैं और बच्चे से कह रहे हो जल्दी उठो, तो कैसे उठ जाएगा? तो ये तो कॉन्फ्लिक्शन हो गई ना. ये तो बिना बात के इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा है. इवेल्युएट करिए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या रिजल्ट निकल रहा है. ठीक है, Right. तो कहने का मतलब यह है कि यदि बच्चे को आप समझाओ या डांटो, बात एक ही है. उस ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा तो वैसे ही हो जाएगा, आप कहते हो तो. ठीक है, और प्लीज बच्चे को कहने से पहले पहले आप ये सोचिए कि आप वो काम कर पा रहे हो, आप उस चीज में सही हो जो उसको एडवाइस दे रहे हो.
आप कर नहीं पाते हो। एडवाइस देना तो बहुत आसान चीज है ना सर, प्रैक्टिकल करना ही तो एक डिफिकल्ट चीज है, नहीं तो एडवाइस तो हर एक बंदा दे देगा। एडवाइस तो राइट। फ्री में मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करना है उसको। और प्रैक्टिस हम अपने आप में ही कर सकते हैं ना सर, पहले तो हम करेंगे ना। लीडरशिप जो है वो सेल्फ लीडरशिप है, 40% सर बहुत बड़ा टाइम हो गया। ठीक है, हम खुद डिसिप्लिन है नहीं, हम सारे काम डिले करते जा रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि ठीक टाइम पे करिए। जबकि बच्चों की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है ना सर, बच्चे की अगर हम 5 बार उसको बुलाएं तो उसे एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि फैंटेसाइजिंग इमेजिनेशन इतनी बच्चे की स्ट्रांग होती है, वो तो ऐसा होता है बच्चे को, लोग डांटते रहते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड द रीजन। तो बच्चे को डांटना नहीं है, ठीक है। अगर वो एक बार में नहीं सुन रहा तो दोबारा बोलना है, क्योंकि इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैंने इमेजिनेशन स्ट्रांग है, और उसी को हम कम करने में लगे दे रहे हैं। और बच्चे क्वेश्चन करते हैं, हम उनका जवाब तक तो देते नहीं है। अरे भैया, माइंडफुलनेस पहले हमारा तो हो जाए, पहले हम तो इमोशनली स्टेबल हो जाए, बच्चों को करना चाहते हैं। बच्चे को चाहते राइट। हैं कि वो बच्चा सोशल मीडिया यूज ना करे, हम स्क्रॉलिंग पूरे पूरे दिन कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह बैठते रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो ये तो बच्चों को परेशान करने वाली बात है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आज बच्चों को आप डांट रहे हो तो कल को जब आप कमजोर हो जाओगे तो वो आपको बहुत डांटेगा। इट इज वेरी मच श्योर। तो क्योंकि वो ये समझने लगेगा ना कि डांटना ही एक नॉर्म है, डांटना ही डिसिप्लिन है। अरे भाई, डांटना डिसिप्लिन नहीं है, डांटना तो बेवकूफी है। कभी कभार आपने डांट दिया, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। और प्लीज अंडरस्टैंड, स्मॉल किड्स को अगर आप डांटते हो, उनकी तो वायरिंग चल रही है, तो वायरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, साइकोलॉजी में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे का स्टमक अपसेट हो सकता है। तो इतने कंसिक्वेंसेस क्यों पैदा करो भैया, पहले खुद डिसिप्लिन हो जाओ। घर घर में सारी चीजें आप ऑर्डर में रखिए, अपना रूटीन बनाइए। जब आप डिसिप्लिन हो गए तो बच्चा, आई एम श्योर, चाइल्ड विल डेफिनेटली बी वेरी मच डिसिप्लिन सर। थैंक यू सर। राइट, राइट सर। जैसा आपने बोला सर, चिल्ड्रंस लर्न व्हाट दे सी। इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत सरल तरीके से यू हैव पुट इट डाउन। हाउ कैन पेरेंट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट देयर एक्सपेक्टेशन टू देयर चिल्ड्रन? माता पिता अपने बच्चों को अपनी अपेक्षाएं प्रभावी ढंग से कैसे संक्षिप्त में उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत सारी होती हैं, everything what they want to achieve they was not able to achieve and they want that कि उनका वो एक बच्चा वो पूरी सारी चीजें कर दे। सो वो ये जो गैप है या वो समझाना बच्चे को, इसके बारे में सर प्लीज प्लीज डिटेल में बताइए सर। सर मैं भी एक फादर हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्टेशंस काहे की रखे हैं? जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो उसको करिए ना। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका पब्लिक स्पीकर बने, पहले उसके पास वोकैबुलरी हो, पहले रीडिंग स्किल्स हो, फिर राइटिंग स्किल्स भी हो, फिर थोड़ी सी उसकी मदद करने लगी है, तो स्कूल उसको लेने लगेगा आपको पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, जिस भी सेगमेंट में आप बच्चे को भेजना चाह रहे हो, जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहने से नहीं होंगी सर, वो राइट, करने से होंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि पब्लिक स्पीकिंग की बात हो गई, तो मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा टॉक लाइक टैट, मेरे पास तो कई पब्लिक स्पीकिंग की बुक्स है। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी पब्लिक स्पीकर बने, तो मैंने एक राइट, अपने घर में अपने भाइयों के सारे बच्चों को इकट्ठा करने के बाद ओरेटरी क्लासेस बनाई है सर। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो बच्चे उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो मैं कभी कभी कि जब वो एक्टिविटीज करते हैं तो उनके लिए चॉकलेट ले आता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। उन्होंने फैमिली का एक ग्रुप भी बना रखा है। कभी मेरे को चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो मैं उनसे आकर शेयर करता हूँ। तो वो अपनों में से ही किसी बच्चे को चीफ गेस्ट बनाते हैं, बहुत सीरियसली करते हैं। ठीक है, तो सर जो हम करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो करना शुरू कर दें, एक्शन ले। ठीक है, क्योंकि आइडिया तो हमारे पास बहुत है। अब आइडिया, सिर्फ आइडिया से तो दुनिया नहीं चलेगी, आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और प्लीज बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए, जो टाइम उनको सूटेबल हो उसका ध्यान रखिए। जब हम बच्चों का ध्यान रखेंगे तभी तो वो बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन शेयर करने से कुछ नहीं होता है। और एक्सपेक्टेशन, जो जिस चीज में बच्चा अच्छा होगा ना उसमें तो डेवलप होगा। तो ये चीजें हमें समझनी है। अब माय डॉटर इज ओरेटर, my daughter is public speaker, my daughter is sir head girl of our school, that is one of the leading school of Uttarakhand. Why? क्योंकि हम क्या है ना, शेयरिंग। अब भैया शेयरिंग आप ही बोलते चले आओगे, बच्चे की नहीं सुनोगे तो किसको डेवलप कर लोगे? आप किसी को डेवलप नहीं कर सकते। तो बच्चे को सुनना सीखिए आप। बच्चे को खाने में क्या पसंद है, ठीक है, उसको टाइमली लाइए। अगर बच्चे ने आपसे 2 बार कह दिया डैडी आप वो नहीं लाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना रोल प्ले कर रहे हो। आपको जब पता, आप फैमिली में रह रहे हो,
तो आपको पता होना चाहिए ना मेरे बच्चों को क्या पसंद है, बिना कहे अपने टाइम से ले आइएगा आप। अगर एक बार बच्चे ने कह दिया तो ये आपकी मिस्टेक है, और अगर उसने 2 बार किसी चीज को कह दिया तो ये ब्लंडर हो गया फैमिली में। तो इन चीजों का सब ध्यान रखेंगे ना, बच्चे इतना ज्यादा डेवलप होंगे, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, इतना ज्यादा एक घर में एटमॉस्फेयर होगा, तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखने से कुछ नहीं होगा। उनकी हेल्प करनी है, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी बुक्स ला कर देनी है। और राइट, मेरी छोटी बेटी जब वो रीडिंग करनी भी नहीं जानती तो मैं सिर्फ पिक्चर बुक लाता था सर। फिर मैंने छोटी छोटी स्टोरी बुक्स लानी शुरू करी, तो बच्चों को पता भी नहीं चल पाता कि उनकी रीडिंग कैसे डेवलप हो गई। जब रीडिंग डेवलप हो गई तो क्लास में रीडिंग भी कराएंगे, उसको मॉनिटर भी बनाएंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बनाएंगे। तो लीडरशिप तो घर से डेवलप होगी ना सर। स्कूल में तो जो बच्चे अच्छे होंगे उन्हें देख के फिर टास्क असाइन किए जाते हैं। तो प्लीज बच्चों को ट्रोमेटाइज ना करें, बच्चों को परेशान ना करें, बच्चों को प्यार से अनकंडीशनल लव होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए। और जब वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनको सेब काट के दीजिए, संतरा दीजिए, ठीक है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स ला कर दीजिए, ठीक है, बेकरी का इतना अच्छा अच्छा सामान होता है वो ला कर दीजिए, तो बच्चे तो खुश रहेंगे सर। और उनकी सेहत का ध्यान रखिए, और बेटा कैसा फील कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन करेंगे सर। में एकेडमिक की लाइफ नहीं है सर, ये बहुत जरूरी चीज है, और एकेडमिक तो खुद ही सही हो जाएगा। आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दे विल कीप ऑन डेवलपिंग। तो बच्चों को प्यार करिए, प्यार बहुत बड़ी ताकत है, रिलेशनशिप बहुत बड़ी ताकत है, और बच्चों को सुनिए। राइट सर, नहीं सर आपने बहुत अच्छे बताया सर। इसी इसी कंटेक्स्ट में इसी की कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स मेक व्हेन राइजिंग देयर चिल्ड्रन? बच्चों को पालने में माता पिता द्वारा की जाने वाली कुछ सामान्य गलतियां सर क्या क्या होती हैं, और कैसे उनसे बचा जाए, कैसे उनको सुधारा जाए सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, रेनर मार्टिन आपको पता है ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, वो मैंने पहले पढ़ी फिर बच्चों को पढ़ाया भी है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा करियर हो गया। जब मेरे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं मैं कभी नहीं टोकता सर, कभी भी नहीं टोकता। उनकी फ्लुएंसी बन गई, करेक्शन खुद ही, ब्रेन हमारा इतना स्ट्रांग होता है, ब्रेन हमारा इतना स्ट्रांग होता है, वो खुद ही ऑटो करेक्ट करता रहता है, लोगों को पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं है, फिर हम अगर करेक्ट करने लगेंगे उनकी फ्लुएंसी कभी नहीं बनेगी। तो थोड़ा बच्चों को ऑटोनॉमी भी तो दीजिए, अथॉरिटी भी तो दीजिए, ठीक है। अब बच्चों से आपने कहा कि लिस्ट बनाइए, आप उनकी गलती देख रहे हो, अरे भाई अप्रिशिएट करिए बच्चों ने जो किया। जो बच्चे कर रहे हैं उसको लोग अप्रिशिएट ना करके ना मिस्टेक ज्यादा देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा करेक्ट करना है। अरे भाई कौन करेक्ट कर पाया है, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर से आर्टिकल नहीं लिखा जाता, प्रिंसिपल से आर्टिकल नहीं लिखा जाता। बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा सर आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, और बच्चों से चाहते हो कि एक ही शॉट में वो सब कुछ करते, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। और जब मैं 12th क्लास को पढ़ाता था सर, तो मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड में जब राइटिंग कर रहे हो तो रफ लिखिए, राइट पेज में आप इसको फेयर करिए, ठीक है। तो ऑटोनॉमी देनी चाहिए बच्चों को, आप दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो बच्चों को जब ऑटोनॉमी देंगे, बच्चों को सुनेंगे, बच्चों की मदद करेंगे, बच्चों को एक ह्यूमन बीइंग मानेंगे। आपने तो मशीन मान लिया कि जो हमने टॉपिक दिया बच्चा लिख के दे दे, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है। अरे भैया नहीं, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों से जो जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो उसको तो रखिए, और एक्सपेक्टेशन भी क्यों, और बेसिक को बार बार रिपीट करिए। अगर आप बच्चों को चाहते हो कि मैथ अच्छा हो तो बेसिक बार बार रिपीट करिए, एटलस उसको दीजिए, उसको वोकैबुलरी जो बेसिक वोकैबुलरी होती है रिपीटेडली कराइए, वो बच्चा खुद ही डेवलप हो जाएगा सर। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा 2 साल का बच्चा जब वो कोई भी जबान बोलने लग सकता है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें पॉजेस भी होते हैं, वोकैबुलरी भी होती है, एक्सप्रेशन भी होते हैं। स्पीच में क्या नहीं होता है। जब 2 साल का बच्चा बोलने लगता है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रूल आउट ज्यादा कर सकते हैं, एक्सेप्ट कम कर सकते हैं, कम करते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा करेक्शन पे ध्यान ना दें, मोटिवेशन पे और अप्रिसिएशन पे, लव पे, प्यार पे, अफेक्शन पे, इन चीजों पे ध्यान दें। राइट सर, जो आपने जिस तरीके से बताया दैट इज रियली रियली अप टू द मार्क, एंड वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया, दैट इज रियली गुड सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजी कैन पेरेंट यूज टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन मैनेजिंग स्ट्रेस? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग कारणों से स्टूडेंट गेट स्ट्रेस, ओके उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, या वो ट्रिप पे गया था हमें जाने को मिला नहीं, एंड इट कैन बी टॉयज, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी एनीथिंग। फ्रेंड्स हैं उनके पास तो मोबाइल है या जो भी है, टॉयज है, घड़ी है, ये है। सो वो उससे भी, इवन एकेडमिक्स की अगर बात करूं तो मार्क्स की बात करूं, रैंक्स की बात करूं, सो इन सब से बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होने लगा है, या पेरेंट्स
और जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बच्चों को स्ट्रेस होता है। सो सर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? व्हाट स्ट्रेटजीज कैन पेरेंट्स यूज टू मैनेज द स्ट्रेस और मिनिमाइज द स्ट्रेस? देखिए योगेश सर, व्हाट इज पेरेंटिंग? ये है ना, पेरेंटिंग में आपका ये है कि जो मैं हूं, मुझसे बेहतर मेरे बच्चे हों। सबसे बड़ा तो यही है जनरेशन में। दूसरी चीज ये है कि आपने बच्चों को बेहतर कैसे बनाना है। सबसे पहले उनका जो एक्सपेंडिचर है उसको कर करना इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनको नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी अगर उनका कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम इम्पल्सिव होंगे तो हमारे बच्चे भी इम्पल्सिव होंगे। अगर हम बच्चे इस चीजों पे इमोशनली कंट्रोल्ड स्टेबल होंगे तो हमारे बच्चे भी होंगे। तो ज्यादातर प्रभाव हमारी पेरेंटिंग का पड़ता है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का। दूसरे बच्चे के पास मोबाइल है, दूसरे बच्चा मांग ही नहीं सकता मोबाइल, राइट सर? सोशल मीडिया में है, दूसरे बच्चे हैं, हमारा बच्चा मांग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा सर रहने सहने का तरीका जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपलिसिटी इज पावर एंड ब्यूटी, राइट? जब हम इन चीजों पे बिलीव करने लगते हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप पे बिलीव करेंगे ना। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ। फेथ मूव्स माउंटेन। तो बच्चे देखेंगे पेरेंट्स इतने कॉन्फिडेंट है और इतने सिंपल भी हैं, तो बच्चा भी सर वैसे ही होगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड का बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कोई भी बच्चा खराब नहीं हो सकता। और जो बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं कि 13 साल का 14 साल का बच्चा बिगड़ गया। नहीं, वो पहले से ही डिफॉर्मिटीज होती है पेरेंटिंग में। अगर आप अच्छे पेरेंट हो तो आपका बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। और प्लीज, अगर आप बहुत अच्छा प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छा उसको ध्यान रख रहे हो, वो बच्चा किससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो सर ये चीजें मुझे नहीं लगता स्ट्रेसफुल होंगी। और एकेडमिकली बच्चों से आपने कहानी सुनना है। और जैसे कि मैंने सुपर पावर बार बार बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि सर लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चों की आप स्टोरी नहीं सुनोगे और अपनी स्टोरी बताओगे, बच्चे को नहीं सुनोगे, तो वो स्टोरी बताना ही बंद कर देगा। और चाहे वो स्टोरी किसी भी तरह की हो, आपने बच्चे की स्टोरी सुननी है, क्योंकि उसमें वो सारी बातें बताएगा। जब सारी बातें बताएगा तो आपको पता चलेगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा व्यक्ति आया, कौन गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं या फिर दूसरे जो ह्यूमन बींग्स के वो टच में है, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो कनेक्टेड रहना चाहिए अपने बच्चों से। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। इमोशनली पेरेंट्स खुद स्टेबल होंगे तो बच्चा स्टेबल होगा। अगर आप बार बार मोबाइल की घर पे बात चलेगी तो बच्चा तो दूसरे बच्चे का मोबाइल देख के कहेगा ही। जब आप पढ़ाई की बातें करोगे, अच्छी अच्छी चीजों की बात करोगे, आप बाहर घूमने की बात करोगे, आप बच्चों को टाइम दोगे, ठीक है? अब क्या है, शाम को हम टेलीविजन देखने लगते हैं, टेलीविजन से मन उबा तो मोबाइल देखने लगते हैं। बच्चे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना सर। उसके साथ आप खाना खाइए, क्या बच्चों को पसंद है आप उसका ध्यान रखिए, वो खाइए भी खिलाइए भी। सही, वो तो चीजें जो है ना वो सर कभी भी गलत नहीं हो पाएंगी अगर पेरेंट्स सही है तो। थैंक यू सर। राइट सर। नहीं सर, सही सही आपने बात बताई कि इट इज यू शुड कनेक्ट, यू शुड कम्युनिकेट रेगुलरली विद द चिल्ड्रन। सर इसी कंटेक्स्ट में एक नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत बार पेरेंटिंग करते वक्त जो बाउंड्री रहती है वो अपने को एक सीमा निर्धारित करनी पड़ती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर पेरेंट्स टू सेट बाउंड्रीज फॉर देयर चिल्ड्रन? सर वो तो देखिए, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें तो बाउंड्री देखनी पड़ेगी ना। अब हम रात को देर से आते हैं, हम बच्चों से कुछ और कह रहे हैं, नहीं हमें घर पे ही रहना है। जो फाल क्योंकि अपने आप को डेवलप करना है। जब आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम डिवोट करेंगे तो बच्चे भी करेंगे सर। अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो बच्चे भी राइटिंग करेंगे। अगर हम बच्चों के एकेडमिक में इन्वॉल्व हैं तो बच्चों को अच्छा लगेगा, उनको इजी लगेगा। आपको पता चला कि बच्चों को स्टेशनरी चाहिए, ठीक है, आप स्टेशनरी ला कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा हो जाएगा। तो बाउंड्री की बात भी तो बीच बीच में चलेगी ना। जब आप चर्चाएं होंगी घर में तो बाउंड्री की बात भी चलेगी, क्योंकि करेक्टर्स के बारे में भी होता है। मूवीज के करेक्टर हो गए, टेलीविजन के करेक्टर्स हो गए, या फिर रिलेटिव्स में करेक्टर्स हो गए, या फिर नेबरहुड में करेक्टर्स हो गए, या फिर जो हमारी फ्रेंडशिप सर्कल है उसमें करेक्टर्स हो गए। लोग बातें करते हैं तो उन बातों से बच्चों को बहुत आइडिया लगता है। ये नहीं कि हम उन्हें बताएंगे तभी पता चलेगा। जब हम डिस्कशन होंगे तो डिस्कशन में जो है वो वैल्यू है, डिस्कशन में जो है कंटेंट्स है। तो इस तरह के डिस्कशन घर में हो। और डिस्कशन सर एटीट्यूड से होते हैं, माइंडसेट से होते हैं,
जिस तरह की चीजें आपको पसंद होंगी वही तो बार बार डिस्कस करोगे, ठीक है। तो बच्चा उसको ग्रास्प करता रहता है, तो बच्चे के जो करेक्टर वो फॉर्मेशन वो हो जाता है। इन प्लेस ऑफ टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी वी शुड टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। जैसे सोक्रेटिस ने कहा है कि दिन में भी हम ऐसे ही रहने चाहिए जैसे हम रात में रहते हैं, रात में भी ऐसे रहने चाहिए, दिन में मीन हमारी डुअल पर्सनालिटी ना हो। अब हम पता चला कि किसी और के बारे में घर में तो निगेटिव बात कर रहे हैं, उसके सामने पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाय द वे निगेटिव बात करनी क्यों है? अगर कोई निगेटिव बंदा है तो हम डिस्टेंस भी तो बना सकते हैं, बात ही खत्म हो गई तो निगेटिविटी हम क्यों फैलाएं, राइट। तो ये एटीट्यूड होना, फॉर्मेशन ऑफ दैट एटीट्यूड इज वेरी वेरी एसेंशियल। सेम इट्स ट्रांसफर टू स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल सर। Sir, moving to the next question, what role do you think technology plays in parenting today? Pros and cons दोनों है कि चलो ठीक है, परेशान कर रहा है, छोटे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मोबाइल दे दिया, वीडियो दो, खाना तो खा लेगा। या इवन मैं जब बात करूं कि आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर रियली प्रोन, दे अब वो बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल पे गेम्स हो गया या इवन स्टडी हो गया, उससे ही कनेक्टेड रहते हैं। सो व्हाट रोल डू यू थिंक टेक्नोलॉजी शुड प्ले इन पेरेंटिंग टुडे? सर मेरा मानना तो ये है ना, बच्चे की जो वायरिंग होती है वो जो जो गैजेट्स है उससे डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जी। उसमें हर तरह के कंटेंट्स, हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। सेकंड, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने ना ब्रेन रोट एक वर्ड ऑफ द ईयर निकाला है। इसका मतलब ये है कि ना हमारा जो ब्रेन है ना वो अच्छे से काम प्रोसेस अच्छे से नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो एजिंग होती है, दूसरा कारण हम्म। उसका मोबाइल यूसेज भी है। लोग कह रहे हैं कि उससे आंखें खराब होती है, नहीं। आंखें तो होती हैं, विजन पे तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है ना उसकी प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम्म। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके साथ साथ एक इमेजिनेशन भी चलती चली आती है, ठीक है। राइट, एक राइट। कलरफुल इमेजिनेशन होती है, वो गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन जब हम मोबाइल और स्क्रीन यूज करते हैं तो वो चीज नहीं चलती है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। जब वो कम हो रही है तो बच्चे को फिजिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और चूंकि बच्चा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है तो उसकी स्पीच बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। और स्पीच इज गॉड गिफ्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। तो बच्चा फंबल करने लगेगा, बच्चा लिस्पिंग करने लगेगा, तुतलाने लगेगा, हकलाने लगेगा और सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है। तो मेरी पेरेंट्स से तो रिक्वेस्ट यही कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। और 14 ईयर्स तक तो बच्चा यूज मोबाइल को करे नहीं। अब लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे को तो यूज करनी चाहिए, नहीं। उसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बच्चे को जब नेसेसिटी होती है ना तो बच्चे सीख ही जाते हैं। और 14 ईयर्स बहुत ओल्ड एज नहीं है कि बच्चे ना सीख पाए। हमने तो देखो इतनी अच्छी खासी उम्र में जूम चलाना सीखा, और सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो बच्चे को राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, जो प्राइमरी स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगी। अब जब सारी चीजें स्किल डेवलप हो गई तो ये तो प्लेटफॉर्म्स है ना सर, इसको तो यूज आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का खुद भी यूज कम करने और बच्चों को भी यूज कम करने दें। और फिजिकल एक्टिविटीज, पार्क में जाना हो गया, रीडिंग हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है। और घर में घूमना फिरना हो गया, घर में साइकिलिंग हो गई, इन सारी चीजों पे फोकस करें। बच्चे की उम्र भी अच्छी होगी, बच्चे की ताजगी भी बनी रहेगी, और जो एकेडमिक है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से 18% बच्चे का एकेडमिक इम्प्रूव होता है। ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और बच्चे का जो खान पाने का है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, राइट, फ्रेश एयर भी ले पाएगा। और मोबाइल से तो फिर निगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। इसलिए हम अपने स्कूल में, मेरे स्कूल में हम होमवर्क कभी नहीं देते मोबाइल के थ्रू। राइट सर, नहीं सर, ये तो बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नाउ इट हैज बीन ए कल्चर कि एवरीथिंग दैट हैज टू बी पुट डाउन इनटू एन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और दैट सेक्शन। तो ये तो सर बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट उस बहाने बच्चे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, एंड इवन पेरेंट्स कैन गेट टू नो, ओके, दे हैव दैट क्यूरियोसिटी, ओके आज क्या आया है, इंस्टेड ऑफ दैट आई नो दैट अब तुम पढ़ लो। तो ये तो आपने सर बहुत अच्छा बताया, दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग, it is really difficult and great. Sir, moving into more complex question about parenting, what advice do you have for parenting struggling with work life balance? आज के टाइम पे पेरेंट्स जो है उनका वर्क लाइफ बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो गया है। सारा टाइम, या जो पहले का दौर था उस हिसाब से आज जो है दोनों पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, एंड जो टाइम रहता है विद देयर
चिल्ड्रंस, या उसमें मोबाइल टाइम घुस गया है, टीवी आ गया है, सो ये कैसे वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे कर सकते हैं, और हाउ दे कैन कनेक्ट विद देयर चिल्ड्रन? सर एक तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ना कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है उन्हें करें, जो महत्वपूर्ण काम नहीं है उन्हें ना करें। सोशल कमिटमेंट्स कम होने चाहिए, पार्टिंग कम होनी चाहिए, अपने आप को सिंपल रखिए, कम कपड़े रखिए। लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, मैं कहता हूँ मिनिमलिज्म अगर होगा, कम से कम चीजें नहीं होंगी, कम से कम चीजें होंगी तो ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो जो चीज आप राइट। यूज कर रहे हैं उनको रखिए, जो चीज यूज नहीं कर रहे हैं उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सामान लेकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से सारी चीजों का है। इफ यू आर मिनिमलिस्ट एंड यू आर लिविंग सिंपल लाइफ, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और सर आपने, जैसे मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ, हम स्कूल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अंटिल आई प्लान फॉर माई लाइफ, राइट। सबसे पहले मेरे को ऑर्गेनाइज होना है, कौन से कपड़े मेरे को पूरे वीक पहनने हैं। ठीक है, वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। इसी तरह से सर जब मैं करूंगा तो मेरी फैमिली करेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोशल कमिटमेंट्स, बाहर जाना, पार्टिंग, उससे स्ट्रेस ज्यादा होती है। एंड आई समटाइम्स आई कॉल प्लेजर इज पनिशमेंट। जब पर्पस लाइफ में नहीं होता तो प्लेजर की तरफ जाओगे, जब प्लेजर की तरफ जाओगे तो वो पनिशमेंट हो जाएगा, जब वो पनिशमेंट हो जाएगा तो स्ट्रेस तो होनी है। फिर स्कूल भी लेट जाओगे, आप ऑफिस भी लेट जाओगे, वहां पर सही से काम भी नहीं कर पाओगे। तो कम काम हो, प्रोडक्टिव काम हो। पेरेटो प्रिंसिपल, 20% थिंग प्रोड्यूस 80% रिजल्ट, एंड 80% थिंग प्रोड्यूस 20% रिजल्ट। तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, किन चीजों से रिजल्ट आ रहा है, जिनसे रिजल्ट नहीं आ रहा उनकी छुट्टी कर दीजिए आप। इट इज वेरी सिंपल। और थोड़ी बुक्स पढ़ लीजिए। एसेंशियलिज्म एक अच्छी बुक है, द वन थिंग आई लव दैट बुक, राइट। तो सिंपल रहिए, सिंपल खाना खाइए, सिंपल लोगों के साथ रहिए, सिंपल कम्युनिकेशन रखिए, तो बच्चों के पास सर, बच्चों के लिए टाइम ही टाइम होगा। राइट सर, नहीं सर, आपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारे, जैसे मैं बोला, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, हाउ कैन पेरेंट एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की, कि हाँ, जैसा मैंने पहले भी सवालों में पूछा कि जो हम नहीं बन पाए वो सारी चीजें हमें बच्चे से करवानी है। सो सर इसके लिए प्लीज सर आप क्या बताना चाहिए, हाउ कैन पेरेंट्स encourage their children to be a responsible citizen? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो सर अगर पेरेंट की जहां तक बात है, पहले तो पेरेंट होंगे ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। Right, व्हेन आई right, एम right. रिस्पॉन्सिबल दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो जो एक तो सिंपल लाइफ मैंने बताया, मिनिमलिज्म मैंने बताया। दूसरा, जहां से जो चीज लो वहीं पर रखो, ये इससे भी बहुत टाइम बच जाएगा। अगर आपकी जो जो कीज होती है ना, अगर आपने उसकी एक जगह बना ली, आपने टॉवल की जगह बना ली, आपने एक रूटीन बना लिया, तो लाइफ तो वैसे सिंपल हो गई सर। लोग भूल जाते हैं, अरे भाई याद क्यों रखना है, जब आपने एक जगह बना ली है तो आप ऑटोमेटेड हो गए ना। ह्यूमन Right. बीइंग इज 38% ऑटोमेटेड। तो हैबिट्स डेवलप करिए, हैबिट से तो आप कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। ठीक है, लोग पायलट्स भी हैं, डिफरेंट चीजें भी कर रहे हैं, तो आपने रेस्पॉन्सिबल रहना है। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने खुद रेस्पॉन्सिबल होना है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने खुद सबसे पहले हेल्दी होना है। हाइड्रेटेड रहिए, अच्छा खाना खाइए, कम खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ सोचिए। ठीक है, नेचर में जाइए। ठीक, जब आपका रूटीन अच्छा होगा तो बच्चों का रूटीन अच्छा होगा। अब हाँ, यहाँ पर ये सबसे पहले ना सिंपल चीजों को बच्चों को पढ़ाइए, छोटी छोटी चीजों को पढ़ाइए, और जो जो बेसिक्स होते हैं उसको रिपीट होना चाहिए। बाकी तो एक्सटेंशन है। अगर आप बच्चे को क्लास 4 तक आपने हेल्प कर दी तो बच्चा खुद ही डेवलप होता चला जाएगा, उसका एक टेम्परामेंट बन जाता है ना। यस, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे डेवलप नहीं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में नहीं हो पाते हैं, 50% तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 50% जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। एक्सेप्शनल केसेस अलग है। हमने तो बहुत एक्सेलरेशन हमारी एजुकेशन में बहुत लेट हुआ, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई, लोग एनर्जी नहीं लगाते। दूसरी चीज ये है कि बच्चे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो उसका स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ पर खेलने दीजिए, उसकी ताकत है उसकी ताकत पर खेलने दीजिए। ठीक है, और उसको 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 हेल्प करिए,
अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, उसको बैट ला कर दीजिए, विकेट ला कर दीजिए, बुक्स ला कर दीजिए क्रिकेट से संबंधित। इसी तरह से हर सेगमेंट की बात है। अगर वो मेडिकल बायोलॉजी में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, तो वो नीट की तैयारी कर सकता है। तो बच्चा तो खुद ही मोटिवेटेड होता है, उसकी हेल्प करनी है, जो जो हेल्प चाहिए आप उसको बोल दीजिए, और यू फील फ्री एंड, और प्लीज हर जगह पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, रिसोर्सेज खर्च नहीं कर सकते। जो बच्चे की चॉइस है उसी पे आप खर्च करिए। बच्चे को क्या चाहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए, बच्चे से पूछते रहिए हाउ आर यू फीलिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ आर यू फीलिंग। इफ चाइल्ड इज सेइंग यस आई एम फीलिंग दिस, एक्सेप्ट इट। सो एक्सपेक्टेशन ना रखे, बच्चे के गिफ्ट की तलाश करिए कि बच्चे के अंदर गिफ्ट क्या है, और उसको डेवलप करने में मदद करिए। और बच्चों को ऐसा एटीट्यूड डेवलप करिए कि वो समाज को दे, ठीक है, कम्युनिटी को दे, देश को दे, पूरी दुनिया का नाम, पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन करे। तो ये सारी चीजें जब होंगी ना, तो स्काई इज नॉट द लिमिट। तो बच्चों को ऑटोनॉमी दीजिए, उसको इंडिपेंडेंस दीजिए, फ्रीडम दीजिए, ऑफ कोर्स बाउंड्री के साथ दीजिए, ठीक है, और चीयरिंग करते रहिए, तो बच्चा बहुत डेवलप हो सकता है। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। एंड अनकंडीशनल लव इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली एंड पेरेंट। राइट सर, राइट सर। सर जैसे बच्चों के बारे में बताएं, एडोलेसेंट जो हैं, एडोलेसेंट एज के जो बच्चे हैं, सो व्हाट रोल डज ओपन कम्युनिकेशन प्ले इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? एडोलेसेंट बच्चों में ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये सर इसके बारे में प्लीज बताइए। सर कॉम्प्लेक्स लगता है हमें, होता नहीं है। देखिए, एडोलेसेंस में क्या होता है, जब बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरा ब्रेन मेरा अपना है, मेरी लाइफ मेरी अपनी है, वो फ्रेंड्स की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस में पॉजिटिविटी क्या है, बच्चे के साथ इस टाइम स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो बच्चा जिस चीज में अच्छा है उसको अप्रिशिएट करिए। और बच्चे ने जब इस टाइम में, जहां पर 13 टू 19 ईयर्स की एज में ये ब्रैकेट लगा दिया, तो उसमें उसने एक्सेलेंट होना ही होना है। तो जब आप शुरू से अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हो, तो बच्चा डिविएट क्यों होगा? अब लोग कहते हैं एडोलेसेंट में बिगड़ गया, नहीं, बिगड़ वो डिफॉर्मिटी पहले, डिस्टॉर्ट वो पहले हो गया है, वो तो रिफ्लेक्शन आने शुरू होते हैं उस समय में। तो जब आप डिवोट कर रहे हो टाइम, जब बच्चे को दे रहे हो, बच्चे को सुन रहे हो, बच्चे को प्यार कर रहे हो, तो एडोलेसेंट में और अच्छा होगा बहुत, और फ्रेग्रेंट देने लगेगा। वो तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि भी ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, क्योंकि जनरली बच्चे पेरेंट्स को ही एमुलेट करते हैं, ठीक है। और चूंकि प्लीज अंडरस्टैंड, उससे पहले पेरेंट्स काफी यंग होते हैं, तो पेरेंट जो होते हैं ना, स्टेबल नहीं होते हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने आप का ध्यान रख लें, स्टेबल हो जाए, एक उनका विजन हो, पर्पस ऑफ लाइफ हो, बच्चा उनसे सीखता है, और वो बच्चा फिर एक्सेलरेट करने लगता है। मैंने आपको बताया ना, क्लास 8 में मेरे को लगा कि स्पेलिंग में मैं अच्छा हूं, तो मैंने 2-2 रुपए जब फादर देते थे, तो उसकी डिक्शनरी खरीदी, और मैंने पूरी एनर्जी लगाई, और फिर मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा होता गया। धीरे 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 इंग्लिश मेरी इंप्रूव होती चली गई, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर इतना टाइम दो तो हम ऐसे डेवलप हो सकते हैं। सर मेरा बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा मॉडरेट है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मैंने एजुकेशन का दामन थामा और मैं डेवलप होता चला गया। और बच्चे के अंदर भी यही होता है कि वो किस चीज को पकड़े कि उसकी उसकी जीवन की जो नैया वो पार होने लगे। तो बच्चा तो उस चीज की तलाश में होता है, पेरेंट्स ने उनकी मदद करनी है, ना कि परेशान होना है। अब क्या होता है, पेरेंट्स दूसरे बच्चों को एग्जाम्पल देने लगते हैं, जब वो एग्जाम्पल देने लगेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट होगा, जब डिमोटिवेट होगा तो फिर वो रेबेलियस भी हो सकता है। अरे भैया, उसको एक्सेप्ट करना है, जब आप रिजेक्ट करोगे तो फिर इधर उधर की बात करेगा, उल्टी सीधी भी बात कर सकता है। तो बच्चों को एक्सेप्ट करना है, बच्चे की मदद करना है, क्योंकि वो एक अपनी भी लड़ाई लड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। उसको पता चल जाता है ना, मैं आई एग्जिस्ट, तो उसको समाज में प्रूव भी करना होता है, तो उसमें मदद करिए। फिर आप परेशान करने लगते हो मदद करने की बजाय, तो फिर उसको रिजेक्टेड फील नहीं होना चाहिए ना, उसे तो एक्सेप्टेड फील होना चाहिए। सर थैंक यू। राइट सर, राइट सर। नहीं सर, आपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, रियली दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उन्हें उस पर विचार करना चाहिए पेरेंट्स को, और उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दे आर रियली यूजफुल। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन विदाउट यूजिंग पनिशमेंट? मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स का ये समस्या रहती है या ये प्रॉब्लम रहती है। अगेन सर, पेरेंटिंग मॉडलिंग,
If you are disciplined, children will definitely be disciplined. So please see the deformities. Children is disciplined in any segment of their life, right? See, observe it, and when children are doing it, do not correct them and there. Generally, people know outrightly tell them, right? Understand them, listen to them. In talking, you can tell, and child should not realize that the child is being disciplined. So we need not to scold or yell children. When we are yelling, we are losing the control. When we are losing the control, child will also lose the control. So where is the stability? So better still, we should love with affection. We should communicate our feelings, and child will definitely be understanding feeling of ours. When? Why? Because we are understanding the feeling of children. It is very, very reciprocal, sir. We should try to understand it. In this manner, we Right. can discipline children, and we need to be disciplined first. Right, right, sir. It is really my pleasure to have you on podcast, and you are putting really very, very basic and important things that needs to be considered into parenting, that needs to be considered into education sector. Sir, moving to the end of the podcast, what message do you have for parents about the importance of patience in parenting? बहुत बार ऐसा होता है कि यस पेरेंट्स लूज कंट्रोल्स, सो वो पेशेंस कैसे लाए और पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? पेशेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर. पेशेंस से ही पेरेंटिंग हो सकती है, ये समझ लीजिए आप. पेशेंस इज पेरेंटिंग. तो आपने व्हाई व्हाई पेशेंस इज रिक्वायर्ड? Because child has his own pace of growth. I stated, no, we need not to be the carpenter, we need to be the gardener. So child will develop on his own pace. Don't try to make it grown in accordance with your opinion, right? So please keep on nourishing children. Whatever you want to see the change, be the change, right? And please talk to children very politely. Ask them, how are you feeling? I repeatedly telling, right? So it is very, very essential to keep connected with children. If they are connected, definitely they would be very positive and have positive talk with them. If children, they do not have good handwriting, please help them making better handwriting. In place of telling you don't write, you don't know writing, this and that, so please help. Always be ready to help children. So patience is very, very essential. And second word is consistency. If you are consistent in making patience, it is superpower, sir, right? And when you are transferring patience, children will also have patience. And when patience is there in this era of fast moving, right, super fast world, so we will make child limitless. Patience, that is important, sir. Patience is the most important word a parents could adopt, and same should be transferred to children. राइट सर. सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू. आपने जिस तरीके से इंसाइट्स बताए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो रिगार्डिंग एकेडमिक्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग कम्युनिकेटिंग विद देयर चिल्ड्रन, और रिगार्डिंग सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन, मेरे ख्याल से उसमें जो आपने टिप्स बताए, उसमें जो आपने तरीके बताए, द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी आई वुड से रादर, दे आर रियली वेरी गुड, वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट. तो सर, योगीराम चैनल से मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट, एंड फ्रॉम योगीराम टीम एंड योगीराम व्यूअर्स, सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन. मैं आपसे फिर से आपका टाइम लेना चाहूंगा. आगे अपन और जो डिटेल टॉपिक्स हैं उनके बारे में और कुछ इंसाइट्स, हाउ टू बी एन एजुकेटर, हाउ टू बी इनटू अ टीचिंग प्रोफेशन. सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर. Welcome, sir. Welcome. I am also very happy. My sincere gratitude to you, to your audience, to your entire team, and I will appreciate the pinpointed questions. I appreciate it, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for having me.